فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ پچھلے ہفتے سیرت کا 5واں ہمارا درس ہوا جس کی شروعات میں نے کی تھی۔ جی کہاں سے شروعات کی تھی؟ جہری دعوت سے۔ اب سب کو یاد آ گیا، جہری دعوت سے شروعات کی تھی اور کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ جی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے کئی طریقے اپنائے تھے، روکنے کے لیے کئی اسلوب اختیار کیے تھے، جس میں نے پہلا بتایا تھا مذاق اڑانا، دوسرا بتایا تھا شبہات پیدا کرنا، تیسرا بتایا تھا قرآن سننے سے لوگوں کو روکنا، چوتھا بتایا تھا عذاب دینا۔ عذاب کے اندر میں نے کچھ مثالیں دی تھی آپ کو، جی کچھ مثالیں میں نے صحابہ کرام کی دی تھی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان واقعات کو آپ کو خود ڈیٹیل کے اندر پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں گے نا تو عثمان بن عفان کا، مصعب بن عمیر کا، صہیب رومی کا، بلال حبشی کا، عمار بن یاسر کا، خباب بن ارت، جن لوگوں کے میں نے نام بتائے تھے، ان کے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیلز وہاں پر مل جائیں گی، تو کوشش کیجئے ان کو سننے اور پڑھنے کی انشاءاللہ، تو اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ملے گا۔ اسی کڑی کو آج ہم آگے بڑھائیں گے کہ اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا اسلوب اختیار کیے تھے، کیا کیا طریقے اختیار کیے تھے۔ اس میں 5واں طریقہ، کون سا طریقہ؟ 5واں طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ ابو طالب سے بات کرنے کے لیے گئے۔ ابو طالب کون تھے؟ آپ کے چاچا جی، جو آپ کو ابھی اس وقت یعنی جو آپ کی عمر کا جو دور چل رہا تھا، 41 سال 42 سال کی عمر کا جو دور چل رہا تھا، اس میں یہ بچے کو ذرا خاموش کرا دیجیے آپ۔ جو دور چل رہا تھا، اس دور کے اندر ابو طالب جو تھے انہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ آپ کو پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، اور ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بڑی عزت تھی سماج کے اندر، ان کو بولنے سے پہلے لوگ سوچا کرتے تھے کہ ان سے کیسے بات کریں، کیسے انہیں بتائیں۔ تو ابو طالب کے پاس سارے کفار کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ جمع ہو کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ ابو طالب کے پاس۔ کس کے پاس جاتے ہیں بھائی؟ ابو طالب کے پاس جانے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کا بھتیجا ایسا کر رہا ہے، یعنی اگر چاچا بولے گا تو بھتیجے کو بات سننا پڑے گی کہ نہیں سننا پڑے گی؟ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ ہر دور کے اندر یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی دین کو اختیار کرتا ہے، جب کوئی دین کی بات کرتا ہے اور لوگ اس کی دین کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بڑوں تک جا کر شکایت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بڑوں تک جا کر شکایت کرتے ہیں، تاکہ بڑے کی طرف سے دباؤ آئے گا تو آٹومیٹک وہ عمل کرنا چھوڑ دے گا۔ یہی عمل 5واں طریقہ جو دعوت سے روکنے کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ لوگ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، آپ اپنے بھتیجے کو منع کیجئے، آپ کا بھتیجا جو دعوت کا کام کر رہا ہے اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے تو آپ کیجئے۔ اب چاچا کیا کرتے ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں چاچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں کہ بھتیجے سنو، یہ لوگ میرے پاس بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کرتے ہو، ایسا کرتے ہو، تو تم اپنی دعوت سے رک جاؤ۔ کیا کرو؟ دعوت سے رک جاؤ۔ تو ابو طالب کے پاس آ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت سے کیا کیجئے؟ انہیں روکیے۔ ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ دعوت کا کام بند کر دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مشہور جواب دیا تھا جو آپ نے کبھی کہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر سنا اور پڑھا ہوگا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اپنی دعوت سے رکنے والا۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ابو طالب نے جب آپ کو منع کیا کہ آپ دعوت کا کام روک دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دیں گے تب بھی میں اپنی دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں۔ جب ابو طالب نے یہ جواب سنا تو وہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کے اندر بڑے سخت ہیں، نہیں آپ عمل کریں گے ہی کریں گے۔ تو یہ کفار کو آ کے سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، کسی طرح ان کو سمجھا کر کیا کرتے ہیں؟ واپس بھیج دیتے ہیں۔ واپس کیا کرتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ واپس بھیجنے کے لیے ابو طالب ان کے پاس آتے ہیں نا تو کفار مکہ ایک دوسری ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دوسری ڈیمانڈ۔ پہلی چیز کیا کہی تھی انہوں نے؟ سمجھایا تھا نا، کیا کیا تھا بھائی؟ سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ جب آپ کو سمجھانے گئے آپ نہیں مانے تو دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ ایسا کرو ابو طالب، آپ کے اور آپ کے بھتیجے سے بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ کیا کرو؟ یعنی ہمارے اور بھتیجے کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہمیں جو کرنا ہوگا ہمارے حساب سے ہم سیٹ کر لیں گے، انہیں سمجھنا ہوگا سمجھا دیں گے، نہیں تو ہم کو جو لگے گا ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کر لیں گے۔ تب ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیا ہوں؟ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں تمہیں یہ سارا عمل کرنے نہیں دوں گا۔ تو یہ 5واں طریقہ ان لوگوں نے اپنایا تھا آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ کس کے پاس بات کرنے کے لیے آئے؟ ابو طالب کے پاس۔ 6واں طریقہ، خود اللہ کے رسول کے اوپر سختیاں کرنا۔ اللہ کے رسول کے اوپر
سختیاں کرنا. جن سختیوں کے اندر سب سے پہلی سختی انہوں نے یہ کی کہ آپ کی اولاد کو تکلیف دی. کس کو تکلیف دی؟ اولاد کو. اس پوائنٹ کے اندر میں یہاں پر ایک چیز الگ سے آ رہی پر اس کو بیان کرتا چلوں کیونکہ یہ بات نہیں تو چھوٹ جائے گی. آپ کی بچیوں کے بارے میں کچھ بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. یہاں پر میں نے آپ کو چھٹا پوائنٹ کیا بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے چھٹا پوائنٹ کیا اختیار کیا؟ آپ پر سختی کی. کس پر سختی کی؟ آپ پر سختی کے اندر بہت سارے پوائنٹس آئیں گے جس میں پہلا پوائنٹ ہے کیا کیا؟ اولاد کو تکلیف دی. کس کو تکلیف دی؟ اولاد کو تکلیف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چھٹا پوائنٹ الگ ہے اور چھٹے کے اندر پھر یہ سنگل پوائنٹ میں نے سٹارٹ کیا ہے. کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کی اولاد کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کی دو بیٹیاں ایک کا نام تھا رقیہ اور ایک کا نام تھا ام کلثوم. نام لکھ لیجئے. کیا نام تھا؟ رقیہ اور ام کلثوم. ان دونوں کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ابو لہب کے بیٹوں سے. کس سے ہوا تھا؟ ابو لہب کے بیٹوں سے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے تو ابو لہب نے کیا کیا؟ ان دونوں کو طلاق دلوا دیا. کیا کیا؟ اور ان دونوں کا بھی دخول نہیں ساتھ میں رہنے نہیں لگے تھے, بس نکاح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز تھا. نکاح ہوتے کیونکہ اس وقت میں یہ سب مسائل تھے نہیں کہ نکاح کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے. نیا نیا اسلام آیا تھا, آپ نے نکاح کر دیا. اب جیسے آپ نے نکاح کیا اور ابو لہب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا. کون سی آیت نازل ہوئی تھی ابو لہب کے بارے میں؟ کون سی سورت؟ تبت یدا. تو جب وہ سورت نازل ہوئی تو آپ یعنی اپنے ایک طریقے سے بیٹیوں کے سسر کے بارے میں آیت نازل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں. سسر کو غصہ آ گیا, اس نے کیا کیا؟ رقیہ اور ام کلثوم دونوں کو طلاق دلوا دیا. کیا کیا دونوں کو؟ اور ان دونوں سے ان کا دخول نہیں ہوا تھا, یعنی ہم بستری نہیں ہوئی تھی. ابھی صرف نکاح ہوا تھا, ہم بستری نہیں ہوئی تھی, تو دونوں کو انہوں نے طلاق دلوا دیا. تو یہاں بیٹیوں کی ڈیٹیل لکھ لیجئے. سب سے پہلی بیٹی زینب. نام لکھ لیجئے. سب سے پہلی بیٹی کون؟ زینب کا نکاح ہوا تھا ابو العاص سے. کن سے؟ ابو العاص. ان کا نام تھا ابو العاص. کیا نام تھا؟ ابو العاص. انہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ہجرت. یعنی پہلے جب اللہ کے نبی نے دعوت کا آغاز کیا تو مکی دور کے اندر ایمان نہیں لائے تھے. مدنی دور کے اندر ہجرت کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایمان قبول کیا تھا. اور ان کے لیے حضرت زینب نے اپنے ابا سے اجازت مانگی تھی کہ آپ ان کو اجازت دے دیجئے, وہ آپ کے پاس آ جائیں کیونکہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو ہجرت کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا تھا. زینب کے دو بچے, یعنی زینب کے ابو العاص سے دو بچے ہوئے تھے. ایک کا نام تھا علی اور ایک کا نام تھا امامہ. ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام اور بیٹی کا نام امامہ. سن 8 ہجری کے اندر زینب کا انتقال ہوا. کتنے؟ سن 8 ہجری کے اندر زینب کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. دوسری بیٹی رقیہ. رقیہ کا نکاح ہوا تھا عتبہ بن ابو لہب سے. کس سے؟ عتبہ بن ابو لہب, یعنی ابو لہب کا بیٹا جو میں نے ابھی بتایا نا آپ کو, ابو لہب کا بیٹا. پہلا نکاح ہوا تھا کس سے؟ عتبہ بن ابو لہب سے. اب نکاح ہوا, نکاح ہوتے ہی اس نے کیا کرا؟ ان کو طلاق دے دیا. طلاق ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کس سے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا, پر بیمار ہو کر یہ سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. کتنی سن میں؟ سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ عبداللہ. بیٹی کلیئر ہے. رقیہ نام بیٹی کا. ان کا پہلا نکاح جن سے ہوا تھا؟ عتبہ بن ابو لہب سے. نکاح ہونے کے بعد طلاق ہوا. طلاق کے بعد پھر کس سے نکاح ہوا؟ عثمان غنی سے. سن 2 ہجری میں یہ بیمار ہوتی ہیں اور ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال. اور یہی وہ بیٹی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آج 2 سگی بہنوں سے ایک آدمی شادی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے. پر اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسری سے شادی کر سکتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. اس کے بعد تیسری بیٹی ہے ام کلثوم. کیا نام ہے؟ ام کلثوم. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے ہوا تھا عتیبہ سے. کس سے ہوا تھا؟ یعنی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نام میں نے آپ کو بتایا, ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام عتیبہ. تو عتیبہ سے نکاح ہوا تھا. عتیبہ سے جب نکاح ہوا تو ابا نے کیا کروا دیا؟ طلاق کروا دیا. طلاق ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی جب بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کا کس سے نکاح کر دیا تھا؟ ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کر دیا تھا. کس سے کیا تھا؟ یعنی رقیہ اور ام کلثوم دونوں کے شوہر کون ہوئے؟ عثمان غنی. سن 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. سن 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. یعنی حضرت عثمان غنی کو ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. کلیئر. نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کا نکاح چھوٹی عمر کے اندر کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت علی ابن ابی طالب سے. کن سے نکاح ہوا تھا؟
और इनके जो मशहूर बच्चे हैं, बच्चों के नाम जो हजरत फातिमा से हुए थे उनका नाम लिखिए, हसन, हुसैन, उम्मे कुलसुम और जैनब। आप यहाँ पर सब लेडीज बैठे हैं इसलिए स्पेशल ये बात मैं करूंगा। अपने यहाँ नाम रखते क्या पूरे खानदान में नाम आ जाए एक बार तो? क्या बोलते हैं आप लोग आलिम साहब को? हमारी फुप्पो की खाला की लड़की, बहन, ससुर जी के यहाँ, फला के यहाँ, इनके यहाँ ये नाम रखा हुआ, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। अब देखिए हजरत फातिमा ने नाम किसके रखे हैं? अपनी बहनों के नाम रखे कि नहीं रखे? एक सगी बहनों के जो नाम थे उन्होंने अपनी दो बेटियों के नाम रखे, एक का नाम उम्मे कुलसुम और एक का नाम जैनब, क्योंकि उनकी नजर में नाम का अच्छा होना चाहिए, ना कि नाम का कॉमन होने वाला टेंशन। हमारे यहाँ जो टेंशन रखते हैं ना, कॉमन होने वाला टेंशन मत रखिए, अच्छे नाम रखिए ताकि उनकी सीरत के ऊपर उसका अच्छा असर आए। तो हजरत फातिमा के जो 4 बच्चे, हसन, हुसैन, उम्मे कुलसुम और जैनब, ये वो बच्चे हैं जो मशहूर हुए, जिनके नाम लोग जानते हैं। उसके बाद सन 11 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। सन 11 हिजरी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 महीने बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसती के कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद। और यही वो फातिमा हैं। आप जानते हैं मशहूर हदीस इनके बारे में क्या है? सही बुखारी के अंदर एक रिवायत आती है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को पास में बुलाया और उनके कान में 2 बातें कही। एक बात बोली तो ये क्या करने लगी? रोने लगी। और एक बात बोली तो ये हंसने लगी। बताया नहीं उस टाइम लोगों ने पूछा तो। बाद में हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि बताओ ना वो कौन सी बात थी? तो इन्होंने बताया कि जब मैं रोई थी तो इसलिए कि मेरे अब्बा ने मुझे बताया था कि अब दुनिया से रुखसती का मेरा वक्त आ चुका है। और दूसरी बात जिस पर मैं हंसी थी वो ये कि मेरे खानदान में सबसे पहले तू मुझसे आकर मिलने वाली है। तेरा इंतकाल मेरे बाद सबसे पहले मेरे खानदान में किसका इंतकाल होने वाला है? तेरा इंतकाल होने वाला है। तो ये बात याद रहेगी, याद रहेगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी की कितनी बेटियां मैंने बताई? पहली बेटी जैनब, निकाह किनसे हुआ? अबुल आस से। इंतकाल कब हुआ? सन 8 हिजरी में हुआ। रुकैया का निकाह पहले किससे हुआ? उतबा से। फिर निकाह किससे हुआ? इंतकाल कब हुआ? सन 2 हिजरी में। बच्चे अब्दुल्ला। फिर उम्मे कुलसुम का पहला निकाह उतैबा से। इंतकाल कब हुआ? सन 6 हिजरी में। और कोई औलाद इनसे नहीं हुई। हजरत फातिमा का निकाह किनसे हुआ? अली से। इंतकाल कब हुआ? 11 हिजरी में। और इनकी औलाद के मशहूर नाम हसन, हुसैन, उम्मे कुलसुम और जैनब। अब ये पहला पॉइंट चल रहा है। छठे का पहला पॉइंट क्लियर है ना? छठे का दूसरा पॉइंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने तकलीफी दी, पहली तकलीफ दी आपकी औलादों को, क्या कर दिया? उनको वो तलाक दिलवा दिया। सोचिए एक बाप के लिए कितना बड़ा टेंशन होता है ना। आज अपने घरों के अंदर यही होता है। आदमी तौहीद पर आ जाए, तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे, तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे, तुम्हारे रिश्ते जो हमारे घर जुड़े हुए सारे ताल्लुकात तोड़ लेंगे। तो कभी इस बात का टेंशन मत करना, क्योंकि ये अमल किसके साथ हुआ है? हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अमल हुआ। यानी अमल उस जमाने से चला आ रहा है। इसलिए रिश्तों का टेंशन मत लीजिए, टेंशन हमेशा अल्लाह की रजा का लीजिए। अल्लाह के नबी ने इस बात का टेंशन बिल्कुल नहीं लिया। और जब टेंशन नहीं लिया तो अल्लाह ने बेहतर दिया या वैसा दिया? बेहतर दिया ना। क्या कौन दे दिए दोनों बेटियों को? उस्मान गनी दे दिए। कौन दे दिए? दुनिया में जन्नत की बशारत वाले उस्मान गनी मिल गए, क्योंकि अल्लाह ताला उनको बेहतर देने वाला था। पहली तकलीफ तो आपकी औलाद को तकलीफ दी। दूसरी तकलीफ आपको जिस्मानी तकलीफ दी। कैसी तकलीफ दी? जिस्मानी तकलीफ में कुछ मिसालें लिख लीजिए। जब आप नमाज पढ़ते थे, आप पर ओझड़ियां लाकर डाल देते थे। क्या करते थे? ओझड़ी लाकर डाल देते थे। जब आप चलते थे तो आपके रास्तों में कांटे बिछाते थे। क्या करते थे? और कांटे बिछाने वाली औरत जानते हैं मशहूर कौन थी? सबसे ज्यादा कांटे बिछाती थी कौन थी? अबू लहब की बीवी। क्या नाम था उसका? उम्मे जमील। क्या नाम था? जमील का मतलब जानते हैं क्या होता है? खूबसूरत। हरकत थी खूबसूरतों वाली। नाम देखिए, पर मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि नाम अगर बहुत अच्छा है तो उसका मतलब अच्छी निकलेगी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हो सकता है कि नाम बहुत अच्छा हो लेकिन हरकतें अच्छी ना हो। तो ये उम्मे जमील नाम था, बड़ी खूबसूरत की अम्मी थी, लेकिन नाम वाले हरकतें नहीं थी। तो अल्लाह के नबी को जो जिस्मानी तकलीफें दी गई, पहली तकलीफ नमाज पढ़ते तो क्या करते थे? दूसरी तकलीफ रास्ते में कांटे बिछाते थे। और उसी दौर का एक मशहूर वाकया सही बुखारी हदीस नंबर 240। सही बुखारी हदीस नंबर 240। उकबा बिन अबी मुआइत, नाम लिखिए इसका। ये बहुत शरीर आदमी था। इसका नाम था उकबा बिन अबी मुआइत। मीम ऐन या ता। उकबा बिन अबी मुआइत। ये क्या करता है? मुआइत
क्या करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इतने में इनके बहुत सारे साथी बैठे होते हैं इन कुफ्फार के। तो अबू जहल कहता है कि मैं अभी देख कर आया हूँ, एक ऊंट ज़िबा किया गया और उसकी बहुत बड़ी ओजड़ी, ऊंट को देखा आपने कितना बड़ा होता है, सोचिए उसकी ओजड़ी का कितना वजन होता होगा। एक ओजड़ी पड़ी हुई है, कोई उसको उठाकर लाकर इस पर डाल दो जो नमाज पढ़ रहा हो। नमाज पढ़ने वाले कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उक़बा बिन अबी मुअय्यिद कहता मैं करूंगा, वो जाता है, ओजड़ी उठाकर लाता है और अल्लाह के नबी सजदे में जाते हैं, उनके ऊपर रख देता है, इतना बड़ा बोझ डाल देता है कि अब उस बोझ से उठ नहीं पाते। इसी दौर में फातिमा आती हैं, ओजड़ी को हटाकर कहती हैं कि अल्लाह तुम्हें गारत करे, ये तुम क्या अमल इस इंसान के साथ कर रहे हो जो कह रहा है कि अल्लाह ताला एक है, तुम्हें तौहीद की तरफ बुलाता है, तुम उसके साथ ये अमल कर रहे हो। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 काफिरों के लिए नामजद बद्दुआ की थी। क्या की थी? नामजद, यानी नाम लेकर बद्दुआ की थी। उन 6 लोगों के नाम लिख लीजिए। उतबा, उतबा, शैबा, शैबा लिख लिया, वलीद, वलीद, उमैया, उमैया, फिर यही उक़बा जिसका नाम पहले आपने लिखा है ना, 5 लोग थे। ये 5 लोग हैं जिन पर नामजद आपने बद्दुआ की थी कि अल्लाह ताला तू उतबा की पकड़कर, अल्लाह तू शैबा की पकड़कर, अल्लाह तू वलीद की पकड़कर, अल्लाह तू उमैया की पकड़कर, अल्लाह तू उक़बा की पकड़कर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सबको जलील और रुस्वा कर दिया था। तो मैंने छठा पॉइंट आपको क्या बताया कि अल्लाह के रसूल पर क्या की इन लोगों ने? हाँ, तो तकलीफें दी, अल्लाह के रसूल को तकलीफें दी। उसमें पहला पॉइंट किसको तकलीफ दी? आपकी औलादों को। दूसरा पॉइंट किसको तकलीफ दी? खुदा सल्लम को जिस्मानी तकलीफें दी। अब उसके बाद हमारा बेसिक जो पॉइंट चल रहे हैं कि दावत से कैसे रोका, उसका 7वां पॉइंट क्या किया? आपसे मोजज़ात की डिमांड की। क्या डिमांड की? मोजज़ात। मोजज़ात किसको कहते हैं भाई? वो काम जो आम आदमी नहीं कर सकता है, उस काम की डिमांड की कि आप मोजज़ात लेकर आओ। तो उसमें क्या कहते थे? सूरज को इधर से उधर कर दो, ठीक है, चांद को अपनी जगह से हटा दो, मुर्दे को उठाकर बातचीत करवा दो, यानी उल्टी सीधी डिमांड। ऐसी बात करना कि जिसके बारे में आप जवाब ना दे सके, जिसको आप पूरा ना कर सके। तो आप सिर्फ इतना पॉइंट लिखिए, 7वां पॉइंट, आपसे मोजज़ात की डिमांड की। क्या की? आपसे मोजज़ात की डिमांड की। मोजज़ात की डिमांड कर रहे थे कि आप लाइए, कोई मोजज़ा लाकर बताइए। अब ये तो इधर अमल कर रहे थे। अभी अपने 7वें पॉइंट के अंडर में कुछ बातें मैं जिक्र करूंगा, आप उसे अंडर मतलब उसके अंदर का हिस्सा नहीं है, पर बीच में लिख लीजिए, क्योंकि इसके आगे के पॉइंट इसके बाद आएंगे, इसलिए मैं इसके बाद बयान करूंगा। तो 7वें पॉइंट के बाद आप लिखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के अंदर जब तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, आपने 2 अमल किए थे। क्या किए थे? 2 अमल किए थे। क्या किए थे? इस पॉइंट में, मतलब इस पॉइंट को यहाँ क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट अलग से लाइन पर लिख लीजिए, और अलग जो 8वां पॉइंट है वो इसके बाद आएगा, क्योंकि वो इसके, मैं आपको क्या वाकयात की तरतीब से चीजें बता रहा हूं ताकि आप कहीं पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो इंशाल्लाह, है ना। तो मोजज़ात की डिमांड की, यानी ये तक करते रहे, और इधर मतलब ये लोग अपनी हरकतें कर रहे हैं, उधर अल्लाह के नबी सल्लम क्या कर रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने इस दौर के अंदर 2 काम किए। सबसे पहले एक सेंटर कायम किया। क्या किया? यानी इससे पता चलता है कि दावत के लिए एक मरकज होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? मस्जिद हो, कोई भी जगह, उसके लिए एक मरकज बनाइए और वहां से दावत का काम कीजिए, तो आपका दावत का काम आसान होगा। तो इस्लाम का पहला दावत का सेंटर कौन सा था? दारुल अरकम। क्या नाम था उसका? दारुल अरकम। दारुल अरकम। आपने इसे इस्लामी सेंटर बनाया। ये सफा पहाड़ी के पास में था, यानी दूर से नजर नहीं आता था। तो आपने क्या किया? इसको क्या बना लिया? सेंटर बना लिया। अब आपने देखा कि लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, तो आपने पहाड़ी के पीछे घर बनाया, दारुल अरकम। एक घर बना हुआ था, उसको सेंटर बना लिया कि अब सहाबे किराम यहाँ आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, दीन कबूल करेंगे। तो काफिरों को एकदम नजर नहीं आएंगे, तो काफिर क्या करेंगे? इनको तकलीफ नहीं देंगे, इनको तकलीफ नहीं देंगे। तो पहला अमल आपने क्या किया? दारुल अरकम को सेंटर बनाया। क्या किया? सेंटर बनाया। उसके बाद दूसरा एक अमल, ये आपकी उम्र कौन सी चल रही है अभी? 43, 44, 45 के समथिंग का ये सारा माजरा है। अब आपकी उम्र जब 44 पे, और ये देखिए मैं उम्र आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि उम्र के साथ वाकयात याद रखोगे तो आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलोगे आप। मैंने शुरू से उम्र बताई कि नहीं बताई आपको? शुरू से बता रहा हूं ना मैं उम्र इंशाल्लाह, ताकि इन उम्र के हिसाब से आप बातें याद रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। तो आपकी 40 से 45 साल की उम्र के बीच के सारे वाकयात चल रहे हैं। तो आपकी उम्र जब 44-45 साल की हुई, तब आपने सहाबा कराम जब तकलीफ में बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो पहला काम आपने किया कि एक सेंटर बनाया। दूसरा काम आपने क्या किया? हबशा की हिजरत का हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? यानी सऊदी अरब से पास में एक जगह थी हबशा। हबशा किसे कहा जाता है? कौन सा इलाका लगेगा वो?
हाँ नहीं, बड़ा इलाका जिसे मशहूर नाम जानते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर दरमियान लगता है उसके पास में, जिसे हम क्या कहते हैं लातिनी जबान में, इथोपिया क्या कहते हैं। तो वहां पर उस जमाने के अंदर बिलाल कहाँ के रहने वाले थे, इसी हबशा के। अल्लाह के नबी वसल्लम को ये खबर थी कि हबशा के अंदर एक बादशाह रहता है जो बहुत रहम दिल है, बड़ा रहम करने वाला है। तो आप सहाबे कराम को हुक्म देते हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तुम लोग क्या करो, हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। क्या करो, हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। तो रजब के महीने में, रजब के महीने में हिजरत के 5 साल पहले, क्योंकि अभी हम लोग साल कब से जोड़ते हैं, हिजरत से जोड़ते हैं ना साल, तो ये हिजरत के 5 साल पहले की बात है, हिजरत के 5 साल पहले की बात है। रजब के महीने में अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया कि तुम क्या करो, हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाओ। ये पहली हिजरत थी जो इस्लाम के लिए की गई। इस हिजरत क्योंकि हबशा की तरफ 2 बार हिजरत हुई है, पहली जो ये हिजरत थी ये रजब हिजरत के 5 साल पहले हुई, जिसके अंदर 12 आदमी और 4 औरतें थी। कितने थे, 12 आदमी और 4 औरतें। और इसमें उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कौन थे, मतलब इनको अमीर बनाकर आपने भेजा था कि अब तकलीफ बहुत ज्यादा मक्का के अंदर बढ़ गई है, ऐसा करो आप कुछ मोमिनों को लेकर कहां चले जाओ, हिजरत करके कहां चले जाओ, हबशा चले जाओ। और ये पहली जमात थी जिसने दीन के लिए हिजरत की, ये पहले लोग थे जिन्होंने हिजरत की। अब इनकी हिजरत की जैसी मक्का के अंदर खबर आई, मक्का वाले इनके पीछे दौड़े कि इन्हें पकड़े जाने ना दे। पर जब तक ये लोग वहां पहुंचते हैं, ये लोग कश्तियों के जरिए कहां पहुंच जाते हैं, हबशा पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, हबशा पहुंच जाते हैं। इसी दौर के अंदर एक वाकया और होता है कि जब ये लोग हिजरत करके हबशा जाते हैं, मक्का वाले बिल्कुल खिसियाने हो जाते हैं कि रोक भी नहीं पाए, हिजरत करके भी चले गए, इधर अल्लाह के नबी भी अपना काम कर रहे हैं। क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर रहते थे। अब हरम के अंदर जाते थे, काबा में जाते थे, इबादत करते थे। तो महीना था रमजान का। कौन सा महीना था, रजब के बाद कौन सा महीना आता है, अरबी महीनों के नाम बोलिए एक बार, हाँ बोलिए तो। मुहर्रम जी, मुहर्रम, फिर सफर, फिर हाँ रबीउल अव्वल, फिर रबीउल सानी, फिर जमादिउल अव्वल, फिर हाँ फिर रजब, रजब नहीं है वो, रजब है, रजब। हाँ शाबान, हाँ रमजान, उसके बाद शव्वाल। ईद नहीं मनाई, ईद मनाना पड़ेगी ना। हाँ शव्वाल, शव्वाल के बाद जिलकाद, जिलकाद के बाद बकरा ईद। हाँ जिलहिज का महीना, कौन सा महीना, हाँ। तो ये जो महीने अरबी के हमें याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग याद नहीं रखोगे तो नीचे वालों कैसे याद कराओगे। अरबी का महीना, तो रजब में ये लोग हिजरत करके गए, इधर अभी 1-1.5 महीना गुजरा, रमजान का महीना आया। रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठकर एक सूरत पढ़ रहे थे। कौन सी सूरत, सूरह नज्म। कौन सी सूरत, नज्म किसे कहा जाता है, सितारे को। किसको, सितारे को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नज्म पढ़ रहे थे, तब अल्लाह ताला ने एक वाकया वहां पर होता है कि सूरह नज्म की आप तिलावत करते हैं, कुफ्फारे मक्का आपकी तिलावत को सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों के ऊपर कुरान का एक ऐसा असर डालता है कि अल्लाह के नबी पढ़ते जाते हैं, वो सुनते जाते हैं। सारे कुफ्फार हैं, ईमान नहीं लाने वाले, झगड़ने वाले, परेशान करने वाले हैं, पर सूरह नज्म की तिलावत सुनते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, यहां तक कि आप एक आयत पर रुकते हैं। कौन सी आयत, फस्जुदू लिल्लाह। सूरह नज्म की एक आयत है, तुम अल्लाह के लिए सजदा करो। क्या करो, जैसे ही बोलते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह के लिए सजदा करो, सारे कुफ्फार क्या होते हैं, सजदे में गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं, अब देखिए, ईमान नहीं रखते थे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, मारना चाहते थे, सब था, पर कुरान की वो तासीर थी कि सुनने के बाद जब अल्लाह के नबी ने बोला फस्जुदू लिल्लाह, कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह के लिए सजदा करो, सारे कुफ्फार क्या हो गए, सजदे में गिर गए। अब ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि जैसे सजदे में गिरे, गिरने तक तो कुछ समझ में नहीं आया, पर गिर के जैसे ही उठते हैं तो बोलते अरे तो जादू कर दिया था। क्या कर दिया था, जादू कर दिया था। अब ये खबर धीरे धीरे हबशा तक पहुंचती है कि कुफ्फार सजदे में गिर गए। वहां ये कंफ्यूजन पता चलता है कि भाई ये लोग मुसलमान हो गए। क्या हो गए, मुसलमान हो गए। अब उधर से उस्मान गनी क्या करते हैं, हबशा वालों को लेकर वापस कहाँ आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं वापस, कि भाई जब मक्का में सब मुसलमान हो गए तब टेंशन नहीं, तब क्या करो, वापस अपने घर चलो। कहाँ चलो, वापस अपने घर चलो। पर यहाँ के पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ है, वो लोग ईमान नहीं लाए थे, बस एक आयत सुन के सजदे में गिरे और दोबारा उस बात का उन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया। तब यहाँ पर अल्लाह के नबी दूसरी बार उन्हें हबशा की हिजरत का हुक्म देते हैं। तो हबशा की तरफ कितनी हिजरत हुई, 2 हिजरत। कितनी हिजरत हुई, 2 हिजरत, यानी एक ही साल के अंदर 2 मरतबा हिजरत हुई। पहली हिजरत के अंदर कितने मर्द थे और औरतें कितनी थी। अब ये दूसरी हिजरत होती है जिसके अंदर होते हैं 83 आदमी, 83 जेंट्स होते हैं और 18 लेडीज होती हैं। कितने जेंट्स थे, 83, और लेडीज
18। ये लोग सब के सब जाते हैं, निकल कर जाते हैं, हिजरत करते हैं। अल्लाह के नबी ने इन्हें हिजरत का हुक्म दिया तो ये लोग हबशा की तरफ हिजरत करके जाते हैं। उधर कुरैश क्या करते हैं, जब कुरैश को पता चलता है कि दोबारा बहुत सारे कहां चले गए हैं, हबशा चले गए। कहां चले गए? हाँ, तो ये 2 आदमियों को डेलीगेट्स बनाकर भेजते हैं। कहां भेजते हैं? हबशा की तरफ। बहुत सारे तोहफे, बहुत सारा सामान, उन्हें बादशाह को पटाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर भेजते हैं। 2 आदमियों को भेजते हैं कुरैश, जिसका नाम था अम्र इब्न आस। क्या नाम था? अम्र बिन आस। और एक का नाम अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया। आप तो सिर्फ अगर चाहें तो हाफ नाम लिख लीजिए, अम्र और अब्दुल्ला। अम्र इब्न आस लिख लें और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया लिख लें तो बेहतर है, नहीं तो अम्र लिख लें और अब्दुल्ला लिख लें। लिख लिया नाम आपने? तो दूसरी मर्तबा हबशा की हिजरत होती है, जिसमें 83 आदमी, 18 औरतें होती हैं। जब ये लोग निकलते हैं तो कुरैश ये मीटिंग करते हैं कि इस बार काम नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, हबशा में अपना डेलीगेट्स भेजते हैं और वो क्या करेगा, इन लोगों को वापस लेकर आएंगे। क्या करेंगे? इन लोगों को वापस लेकर आएंगे। तो किन लोगों को भेजते हैं? 2 आदमियों को। नाम क्या था? अम्र इब्न आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। ये लोग बहुत सारे तोहफे, सामान, ये सब चीजें लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, हबशा के बादशाह के पास, नज्जाशी जिसका नाम था। क्या नाम था? या नज्जाशी। बाज लोगों ने कहा उसका नाम था, बाज लोगों ने कहा उसका लक़ब था, या बाज लोगों का ये भी कहना है कि नज्जाशी उस जमाने के बादशाह को कहा जाता था। नहीं, हबशा का जो भी बादशाह था उससे क्या कहा जाता था? नज्जाशी। पर बहरहाल उसका मशहूर नाम नज्जाशी ही है। नज्जाशी के पास ये लोग जाते हैं। अब जाकर सच बोलेंगे क्या ये लोग? बताइए, सच बता सकते थे? आज के दौर में भी यही होता है, जब कोई आदमी तौहीद पर आता है ना तो उसके खिलाफ क्या क्या बातें की जाती है। अब गौर कीजिए, वही सारी बातें हिजरत हबशा के अंदर जो ये डेलीगेट्स गया था कुफ्फार की तरफ से, उसने जाकर की। और जाकर हबशा के बादशाह के सामने पहले तो बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाते हैं, तोहफे भिजवाते हैं। अब जो तोहफे चले गए उसके बाद बोलते हैं हमें इजाजत चाहिए बादशाह से बात करने की। क्या चाहिए भाई? इजाजत दे दो, बादशाह से बात करना चाहते हैं। अब बादशाह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं ये लोग जो आपके तरफ भागकर आए हैं ना, मक्का वाले, ये बड़े गलत लोग हैं। ये सिर्फ नए नए कुछ नौजवान हैं और ये अमल क्या करते हैं? इनके अमल लिख लीजिएगा। अमल क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्ते तोड़वा देते हैं। क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े करवाते हैं, झूठ बोलते हैं और रिश्ते तोड़वा देते हैं। अब नज्जाशी, देखिए एक मोमिन का ये अमल होना चाहिए। खास तौर पर आप यहाँ पर लेडीज मौजूद है इसलिए बात कहूंगा। आपको अगर कोई ये कहता है ना कि वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, अपन क्या करते हैं फौरन? बताइए आपका अमल क्या होता है? भरोसा करते हो या कंफर्म करते हो? माशाल्लाह, तहकीक करने वाली लेडीज हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लेडीज का हुई, अच्छा माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप तो पक्की मोमिना हो गई। फिर तहकीक करते हैं आप सभी लोग? नहीं, हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हाँ बोला होगा, वो पता हो तो यही ऐसी है ना, क्या बोलते हैं अपन, ऐसी वो तो करती है, हरकत ही ऐसी है उसकी, तो बोला ही होगा मेरे बारे में। पर मोमिन का अमल क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? तहकीक करना चाहिए। जैसे आपको किसी ने आकर बोला अरे तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, तो क्या करो फौरन? अब तो आउटगोइंग फ्री है क्या? आप लोगों क्या लगती है आउटगोइंग? अभी तो फ्री हो गई ना माशाल्लाह। तो क्या करना चाहिए? फौरन फोन लगा दो। अरे बहन, आपके बारे में ऐसी बात है कि आपने मेरे बारे में ऐसा बोला, सच है कि झूठ है? वो बोलेगी जो बोलने वाली है वो क्या है? झूठी है। लड़ाई कराना चाहती है, उसकी बात पर भरोसा मत करो, तो उससे आपकी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। पर अपन क्या करते हैं? फौरन भरोसा करने वाले बन जाते हैं। अब इधर नज्जाशी के सामने जैसे उन लोगों ने आकर बोला कि अरे ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, झूठ बोलते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, तो नज्जाशी ने बात मानी? नहीं मानी। उन्होंने कहा चलो तुमने बोल लिया, अब उधर वालों को बुलाओ। तो मोमिनों की तरफ से बात करने के लिए कौन आते हैं? जाफर बिन अबी तालिब। कौन आते हैं? जाफर बिन अबू तालिब। किसके भाई थे? माशाल्लाह, किसके भाई थे? अली बिन अबी तालिब के भाई, जिनका नाम क्या था? जाफर बिन अबी तालिब। ये उस वक्त अमीर बनाकर भेजे गए थे। इनके साथ पूरा जो हबशा की तरफ जो हिजरत हुई थी उनके साथ भेजे गए थे। अब ये जाते हैं, जाफर बिन अबी तालिब को बुलाया जाता है, बोलते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में मक्का वालों ने ऐसा बताया, अब तुम हमें सच्चाई बताओ। तो जाफर बिन अबी तालिब कहते हैं, इनकी बातें सुनिएगा और हो सके तो कुछ पॉइंट्स इसमें से नोट भी कीजिए आप, कि जाफर बिन अबी तालिब क्या बोलते हैं कि हम जाहिल थे। क्या थे? हम जाहिल थे। हम बुतों की इबादत करते थे, हम मुर्दा खाते थे, हम शराब पीते थे, हम जिनाकारी करते थे, हम रिश्ते तोड़ देते थे। लिख पा रहे हैं आप? हम जाहिल थे, हम बुतों की इबादत करते थे, हम मुर्दे खाते थे, हम बदकारी करते थे, हम रिश्ते तोड़ते थे, हम बुरे पड़ोसी थे। हम क्या थे?
बुरे पड़ोसी थे, हम झूठे और अमानत में खयानत करने वाले थे, हम झूठे और अमानत में खयानत करने वाले थे। पर अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रसूल बनाकर भेजा तो उन्होंने हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने, यानी आप पॉइंट्स के तौर पर लिख लें, उन्होंने हमें तौहीद सिखाई। क्या सिखाई? उन्होंने हमें कहा शिर्क मत करो। क्या मत करो? शिर्क मत करो। उन्होंने सिखाया सच बोलो, अमानतदार बनो, रिश्ते जोड़ने वाले बनो, अमानतदार बनो, रिश्ते जोड़ने वाले बनो, अच्छे पड़ोसी बनो। क्या बनो? अच्छे पड़ोसी बनो। हराम से दूर रहो, हराम से दूर रहो, बदकारी से दूर रहो, बदकारी से, और किसी पर इल्जाम तराशी मत करो। क्या करो? इल्जाम तराशी ना करो। यानी नज्जाशी ने जब बुलाया तो पहले तो जाफर बिन अबी तालिब ने क्या बयान किया? अपनी बुराई बयान की कि अच्छाई बयान की? भाई पहले तो अपने मक्का की बुराई बताई कि भाई हम जाहिल थे, हम बुत परस्त थे, हम मुर्दे खाते थे, बदकारी करते थे, रिश्ते तोड़ते थे, बुरे पड़ोसी थे, हम झूठे थे और अमानत में खयानत करने वाले थे। पर जब अल्लाह के नबी आए तो उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया? हमें तौहीद सिखाई, कहा शिर्क मत करो, हमें कहा सच बोलो, अमानतदार बनो, रिश्तों को जोड़ो, अच्छे पड़ोसी बनो, हराम से रुको, बदकारी से रुको, इल्जाम तराशी मत करो। तो जब ये जाफर बिन अबी तालिब की सारी बातें सुनी नजाशी ने तो बोलता ऐसा करो, जो तुम्हारे पास किताब है ना वो जरा सी सुनाओ। क्या करो? भाई कुरान सुनाओ जो तुम्हारे पास है। तो हजरत जाफर क्या करते हैं? सूरह मरियम की शुरू की कुछ आयतें सुनाते हैं। सूरह मरियम की शुरू की, आप गौर करना, ये नज्जाशी कौन था? दीन के एतबार से क्रिश्चियन था। कौन था? जिसे हम नसारा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आपने ईसाई कहा, मैंने मना किया था ना ईसाई बोलने के लिए। ईसाई इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईसाई बोलेंगे इसका मतलब किसके मानने वाले? जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो इन्हें ईसाई नहीं, इन्हें नसारा बोलना चाहिए, या क्रिश्चियन इंग्लिश के अंदर जो यूज होता है वर्ड का, उससे भी बचते हुए अगर हम नसारा बोले सबसे बेहतर है। तो ये नसारा थे, नसरानियत के मानने वाले थे। और नसरानियत के अंदर सोचिए तसव्वुर क्या है कि हजरत ईसा कौन है? अल्लाह के नाउजुबिल्लाह बेटे हैं। और मरियम को क्या बोलते हैं लोग? अल्लाह ताला की नाउजुबिल्लाह वाइफ बोलते हैं ये लोग। तो इस तरह का अकीदा रखा जाता है। और उनके सामने जाफर बिन अबी तालिब कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं? सूरह मरियम, जिसके अंदर तौहीद का बयान है। ये बयान है कि अल्लाह ताला एक है, हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं, मरियम अल्लाह की बीवी नाउजुबिल्लाह नहीं है। इन तमाम चीजों का बयान है। और ये वही आयतें शुरुआत वाली पढ़ते हैं किसके सामने? नज्जाशी के सामने। अब शुरुआत के अंदर, और मैं आपको एक चीज ये कहूंगा, ये सूरत जो है ना मेरी, ये नहीं, वैसे तो पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आप पढ़ते चले जाएं, उसके अंदर माशाअल्लाह मिठास है। पर सूरह मरियम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे 18 साल या 17 साल हो चुके होंगे। और जब से मदीना गया तब से तो मेरी आदत है कि माशाअल्लाह रात को सुने बगैर मजा ही नहीं आता है। आप एक नाम लिखिएगा, इदरीस अबकर, एक बहुत अच्छे कारी हैं जिनका नाम है इदरीस अबकर। कभी इनकी जबान में आप सूरह मरियम सुनिएगा, माशाअल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग दुनिया के अंदर आप पहुंच गए। इदरीस अबकर, सूरह मरियम, कभी आप सुनिएगा, इनकी यूट्यूब के ऊपर सर्च करके ऑडियो वीडियो दोनों आपको मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सूरह मरियम को सुनिएगा इंशाअल्लाह। इसमें कई नबियों का तस्करा है, कई नबियों का जिक्र है, और उनका पढ़ने का अंदाज बहुत प्यारा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने बरकत दे शेख को अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह मरियम की कुछ आयतें क्या करते हैं? पढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे ही जाफर बिन अबी तालिब पढ़ना शुरू करते हैं, नज्जाशी रोना शुरू कर देता है। क्या करता है? इतना रोता है, इतना रोता है कि पूरी दाढ़ी गीली हो जाती है। सर उठाकर कहता है कि जो तुमने बातें कही या जो तुमने कलाम पढ़ा ना, ये वही कलाम है जो ईसा लेकर आए थे। कौन सा कलाम है? यानी ईसा लेकर आए थे। तुम्हारी बात सच्ची है, तुम्हारी बात के अंदर झूठ नहीं है, तुम्हारी बात के अंदर कोई झूठ नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो क्या करता है? जो दो लोग आए थे डेलीगेट्स, क्या नाम था उनका? अम्र और अब्दुल्ला, अम्र और अब्दुल्ला। अब उनको बोलता है भाई तुम्हारी बातें तो सारी झूठी है। अब बातचीत चली रही थी, ये लोग वहीं पर थे। अगला दिन जब होता है तब ये दोनों बैठकर बात करते हैं, अम्र और अब्दुल्ला। यार यार ये तो मसले वाला काम हो गया, बादशाह को समझाने आए थे, उल्टा ये तो उनकी बात मान गए, अब क्या करें? तो ये प्लानिंग करते हैं, ऐसा करो कि बादशाह किस मजहब का मानने वाला है? नसरानियत का। नसरानियत में ईसा को क्या बोला जाता है? अल्लाह का बेटा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे
नहीं है। तो अब जो पॉइंट पर नज्जाशी भड़क सकता है वो पॉइंट उसके सामने पेश करो। आप देख रहे हो, गौर करो, साजिश करने वाला कहाँ का दिमाग चलाता है उसका। आज आपके यहाँ भी देखना, एक लड़की तौहीद के ऊपर आ जाए तो उसके पेरेंट्स को उन्हीं बातों पर भड़काया जाता है जो बात ऐसी नजर आती है कि यहाँ भड़क सकता है आदमी। कॉमन बात नहीं की जाती है, ये अच्छाई है वो अच्छाई, ये नहीं बताया जाता है, वो पॉइंट बताया जाता है जिससे इंसान भड़क सकता है। अब नज्जाशी के पास आकर क्या बोलते हैं कि अरे चलो ठीक, आपने कल वाली बात तो सुन ली, पर हमारी एक और बात सुन लो, ये ईसा के बारे में बहुत खराब बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खराब बात बोलते हैं। फिर वो जाफर बिन अबी तालिब को बुलाते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोलते हैं। तो हज़रत जाफर बिन अबी तालिब इसी सूरत को आगे पढ़ते हैं जिसके अंदर जिक्र था, और कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि ईसा अल्लाह ताला के कौन है? नबी हैं। कौन है? नबी हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा था, बिना बाप के पैदा किया था। ये कलाम सुनने के बाद नज्जाशी कहता है कि अल्लाह की कसम, तुमने जो बयान किया है ईसा अलैहिस्सलाम उससे रत्ती बराबर भी ज्यादा नहीं थे। मतलब मैं तुम्हारी सच्चाई का क्या करता हूँ? इकरार करता हूँ। यानी ये लोग भड़काने आए थे और नज्जाशी ने क्या किया? एक तरीके से ईमान कबूल कर लिया। क्या कर लिया? और यही वो नज्जाशी है जिसकी नमाज जनाजा गायबाना किसने पढ़ी थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला हुई कि उसका इंतकाल हो गया तो आपने मदीना में क्या किया था? उसकी नमाजे जनाजा पढ़ी थी। अब ये बात मान लेता है और जब देखता है कि हर बात सच्ची है तो ये सारे तोहफे गिफ्ट जो कुफ्फारे मक्का ने भेजे थे ये सारे रिटर्न करवा देता है। क्या करता है? रिटर्न करवा। बात क्लियर हो रही है आपके सामने? कुछ कंफ्यूजन है भाई? बात जो मैंने अभी बताई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलिए ताकि मैं उसको रिपीट करके आपको समझा सकूं। मैंने अभी तक जो बातें आपके सामने रखी, क्लियर हो गया पॉइंट आपके सामने? मैंने कौन से पॉइंट से स्टार्ट किया आज? फिफ्थ पॉइंट था ना? फिफ्थ पॉइंट था अबू तालिब से बात, फिर छठा पॉइंट था अल्लाह के रसूल पर सख्तियां करना, जिसके 2 पॉइंट थे औलाद और आप पर जिस्मानी तकलीफ। फिर 7वां पॉइंट मैंने बताया मौजज़ात। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने बीच में एक बात ये आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि 2 काम आपने किए। पहला काम आपने क्या किया था? सेंटर बनाया। दूसरा काम हबशा की हिजरत का हुक्म दिया। हबशा की तरफ कितनी हिजरत हुई थी? 2 हिजरत हुई थी। 2 हिजरत के अंदर मतलब कुछ फर्क था पर 2 हिजरतें हुई थी। पहली हिजरत में कितने आदमी कितनी औरतें? दूसरी हिजरत में 83 और 18 औरतें थी। जब ये लोग पहुंचे तो बाकायदा डेलीगेट्स भेजा गया 2 लोगों के जरिए। उसने बातचीत की, पूरी डिटेल आपको समझ में आई? समझ में आ गई बातचीत की डिटेल? जी बता सकते हैं हम आगे किसी और को इंशाअल्लाह? हाँ। अब जब ये मामला होता है कुरैश तक ये खबर जाती है कि नज्जाशी ने तो वहां से जिल्लत के साथ भेज दिया, तोहफे भी वापस कर दिए और जिनके बारे में बताने गए थे तो उनकी सारी बातें एक्सेप्ट कर ली। इसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ज्यादा ये लोग गुस्सा करके अब क्या काम शुरू कर देते हैं? मारना पीटना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? यानी मुसलमानों पर अजाब का एक जबरदस्त सिलसिला जो शुरू हुआ था वो हिजरत हबशा की दूसरी हिजरत के बाद ज्यादा शुरू हुआ था। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? मारना पीटना। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अमल करता है उतबा। कौन करता है? उतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, आपके कपड़े फाड़ देता है। क्या करता है? पूरे कपड़े फाड़ देता है, गालियां देता है, यहाँ तक कि आप पर थूकता है। पर वो थूक अल्लाह ताला आपको उससे बचाता, आपके ऊपर वो थूक नहीं आता है, पर इस दर्जे आपके ऊपर ये अमल करता है। तो उस जमाने में जब ये उतबा आपके कपड़े फाड़ता, आपको गाली देता है, एक रिवायत आती है सीरत इब्ने हिशाम के अंदर कि अल्लाह के नबी ने एक दुआ की थी कि अल्लाह ताला तेरे यानी जो तूने कुत्ते इस दुनिया के अंदर बनाए, जो जानवर बनाए हैं, एक जानवर उतबा के ऊपर मुसल्लत कर दे। क्या कर दे? उतबा के ऊपर एक जानवर मुसल्लत कर दे। तो यहाँ पर एक अजीब वाक़या है, सीरत इब्ने हिशाम के अंदर जिक्र किया गया है कि उतबा एक सफर पर जाता है। कहाँ जाता है? मुल्क शाम, सीरिया एक सफर करने के लिए जाता है। रास्ते में जंगल आता है, वो लोग वहां रुकते हैं, उसके बहुत सारे साथी उसके साथ हैं। अचानक क्या होता है? इनके सामने एक शेर आ जाता है। क्या आ जाता है? सीरत इब्ने हिशाम के अंदर ये वाक़या, एक शेर आ जाता है। ये अपने साथियों से कहता है मुझे बचाना, मुझे बचाना। सारे साथी आइड साइड आ जाते हैं। वो शेर पर किसको फाड़ता है? सिर्फ उतबा को। किसको? उसके सर को नोच देता है। क्यों? क्या वजह होगी इसकी? किसकी बददुआ थी? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? अल्लाह ताला तू अपने जो तेरे पैदाइश करदा जानवर है, जो कुत्ते हैं, इनमें से किसी एक को क्या कर दे? इस पर मुसल्लत कर दे। सोचिए अल्लाह के नबी की बददुआ कितनी सख्त होती थी। उसने इस दर्जा आपको सताया था, तब आपने उसके लिए ये बददुआ कर दी और उसके साथ ये अमल हुआ। अब तकलीफों का दौर चालू है, परेशानियों का दौर चालू है, मारने पीटने का दौर चालू है। इस जमाने के अंदर 2 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, 2 मशहूर लोग इस्लाम कबूल करते हैं, जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को सरबलंदी मिली, इस्लाम को इज्जत मिली, मुसलमानों के अंदर जान और ताकत आई। उसमें पहले ईमान लाने वाले थे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अल्लाह के नबी के कौन थे? ये चाचा थे। माशाअल्लाह, कौन थे? चाचा थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाते हैं। ये नबूवत का कौन सा साल चल रहा था? आप सल्लम की उम्र थी तकरीबन 46 साल। नबूवत का 6ठा साल चल रहा था। कौन सा साल?
46 साल आपकी तकरीबन उम्र का ये वाकया है कि हजरत हमजा क्या करते हैं, ईमान ले आते हैं। क्या करते हैं हजरत हमजा, है ना, ईमान ले आते हैं। ईमान लाने का इनका जो वाकया बताया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी के पास इबादत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। इतने में वहां से कौन आता है, अबू जहल आता है। कौन आता है, अबू जहल आता है। जब आपको इबादत करते देखता है तो गालियां देना शुरू करता है। क्या करता है, गालियां देता है, मारता है, और मारने के बाद अपनी मजलिस के अंदर जाकर बैठ जाता है। वाकया ध्यान रहेगा, कहाँ इबादत कर रहे थे अल्लाह के नबी, सफा पहाड़ी के पास। तो किसका गुजर होता है, अबू जहल का। ये मारता है, गालियां देता है। इतने में एक दूर से एक औरत ये सारा माजरा देख रही थी। वो हमजा को जाकर बताती है कि देखो अबू जहल तुम्हारे भतीजे के साथ कितना बुरा सुलूक कर रहा है। अबू हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से इस्लाम समझने लगे थे, दिल में ईमान की मोहब्बत आ चुकी थी, पर यह वाकया उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये मजलिस के अंदर आते हैं और अबू जहल को बोलते हैं कि तूने अभी अभी ये अमल किया, तू ये अमल करके आया है। और वो अबू जहल से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई करते करते बोलते हैं कि आज से मैं भी कहता हूं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये वाकया भी सीरत इब्न हिशाम के अंदर है, जिक्र किया गया है कि हजरत हमजा के इस्लाम लाने का ये वाकया था। वाकया ज़हन में रहेगा इंशाअल्लाह। कुछ बात लिख पाए आप जी। दूसरा ईमान था हजरत उमर इब्न खत्ताब का ईमान। किसका ईमान, ये आज हमारा इंशाअल्लाह दर्स का ये आखिरी पॉइंट रहेगा। किसका ईमान, उमर इब्न खत्ताब। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए हिदायत की दुआ मांगी थी, किसके लिए मांगी थी, और वो हजरत नहीं था, वो अबू जहल था। हाँ, क्योंकि वो हजरत बन ही नहीं पाया, सुनना ही नहीं चाहिए उसने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के लिए दुआ मांगी थी। सोचिए आज लोग जो हमारे यहाँ देखते हैं ना, शिया किसको गाली देते हैं, उस उमर को गाली देते हैं जिसको दुआओं में किसने मांगा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था कि अल्लाह ताला मुझे ये दे, डिमांड की थी कि अल्लाह इसको ईमान दे, और उसको आज लोग गालियां देते हैं, बेवकूफ लोग। हजरत उमर इब्न खत्ताब के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 3681, 3681। तिरमिजी की कौन सी नंबर हदीस, 3681। सुनन तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैनि इलैक उमर इब्न अल-खत्ताब औ अबी जहल इब्न हिशाम। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इस्लाम को उन दो में से किसी एक के जरिए इज्जत दे जिसे तू ज्यादा पसंद करता है। यानी ये बात दलील है कि उमर इब्न खत्ताब को अल्लाह क्या करते थे, ज्यादा पसंद करते थे। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत किसको दी, उमर इब्न खत्ताब को हिदायत दी। तो अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला परेशानी का दौर है, तकलीफ का दौर है, अभी दो मजबूत लोग ना सामने नजर आ रहे हैं, एक उमर इब्न खत्ताब, एक अबू जहल, अल्लाह दोनों में से किसी एक को क्या कर दे, ईमान दे दे। क्या कर दे, ईमान दे दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआएं मांगा करते थे, हजरत उमर इब्न खत्ताब के लिए। और अबू जहल का नाम भी उमर था, तो बाज रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला इन दो में से किसी एक उमर को मुझे दे दे। तो उसका नाम भी असल में उमर था, पर उसकी जिहालत की वजह से उसे अबू जहल कहा जाता था, जाहिलों का बाप। उसे इसलिए कहा जाता था जाहिल का बाप क्योंकि वो जिहालत वाला था, पर उसका नाम उमर था। बहरकैफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला इन दो में से किसी एक को ईमान दे दे। ईमान लाने के वाक़े के सिलसिले में इख्तलाफ है। इनके ईमान लाने के सिलसिले में जो ज्यादा सही रिवायत से चीज साबित है वो ये कि इन्होंने चूंकि कुरान को सुना था, कुरान की तिलावत को ये भी हरम के अंदर, आप जानते हैं अल्लाह के नबी जब रात में कुरान पढ़ते थे तो जितने कुफ्फारे मक्का थे छुप छुप कर क्या करते थे, कुरान सुनते थे। अबू जहल भी सुनता था, उकबा है, उतबा है, शैबा है, रबिया है, उकबा बिन अबी मुईत है, उमर इब्न हिशाम यानी अबू जहल है, या उमर इब्न खत्ताब है, जितने कुफ्फारे मक्का वो लोग क्या करते थे, कुरान छुप छुप कर कुरान सुना करते थे। तो एक ही तो वाकया ये आता है ज्यादा सही रिवायत से कि कुरान सुनने की वजह से उनका दिल नरम हो गया था, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। पर एक मशहूर वाकया जो हमारे यहाँ बयान भी किया जाता है, पर उसकी यानी जो रिवायत आती है उसके ऊपर कुछ उलमा ने कलाम किया है। बहर के सीरत इब्न हिशाम के अंदर वो मशहूर वाकया जिक्र किया गया है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन क्या इरादा करते हैं, क्या इरादा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का। क्या इरादा करते हैं, खत्म करने का इरादा करते हैं। इरादे से घर से निकलते हैं तो उन्हें कोई शख्स ये बताता है कि कहाँ का इरादा है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूं, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो कहता है भाई वहां जा रहा है, पहले अपनी बहन को तो देख ले। किसको देख ले, बहन जिनका नाम फातिमा था, कि बहन को तो जाकर देख। कहा क्या हुआ, कहा तेरी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या कर लिया है, इस्लाम कबूल कर लिया है। उमर इब्न खत्ताब गुस्से के अंदर अपनी बहन के घर जाते हैं। जब बहन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक सहाबी थे, खब्बाब, क्या नाम था उनका, खब्बाब। वो उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे,
कुरान पढ़ा रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही उमर इब्न खत्ताब की आहट होती है, पता चलता है कि उमर आ रहे हैं, खब्बाब क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। क्या करते हैं, इधर बहन सामने, बहन को जैसे ही पूछते हैं जाकर के क्या मामला है, बहनोई बात करने लग जाते हैं, क्या हो गया, तो कहा तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, कहा हाँ। उमर इब्न खत्ताब बहनोई को मारना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, इतना मारते हैं कि खूनजार हो जाते हैं। बहन बचाने आती है तो बहन को भी मारते हैं। बहन को जब खून आने लगता है तो भाई का दिल जरा नर्म पड़ जाता है। जब बहन का खून देखा तो भाई जरा रुक जाता है। उमर कहते हैं कि बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे, कहा हम कुरान पढ़ रहे थे। कहा कुरान बताओ क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि उस दौर के अंदर वही क्या होती थी, कुछ चीजों पर लिखी हुई होती थी। आज जैसा कुरान था, वहां पर कुरान था चमड़े पर, पत्थर पर, लकड़ी पर थोड़ा थोड़ा कुरान लिखा हुआ था। तो जिस भी सहीफे के अंदर लिखा था, उमर कहते हैं मुझे दिखाओ। तो बहन बोलती तुम नजीस हो। क्या हो, नजीस हो, पहले गुस्ल करके आओ, उसके बाद दिखाऊंगी। गुस्ल करके आते हैं, बहन इनको कुरान का वो चीज जो लिखी हुई थी वो देती हैं, कुरान की तिलावत इनके सामने करती हैं। इनके दिल पर ऐसा असर होता है कि दिल नरम हो जाता है। इतने में खब्बाब बाहर आते हैं। जब उमर को नरम देखते हैं, खब्बाब भी बाहर आ जाते हैं। वो भी इनके सामने कुरान पढ़ते हैं। इनका दिल बेइंतहा नरम हो जाता है। अब ये कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलने की गरज से उनके पास जाते हैं। वहां पर सहाबा कराम बैठे थे घर के अंदर। देखा उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, हाथ में तलवार भी नजर आ रही है। जा रहे सारे तो घबरा जाते हैं, क्योंकि उमर इब्न खत्ताब का बड़ा खौफ था। बड़े लोग उनसे डरा करते थे। बाद में डरते थे कि नहीं डरते थे, बाद में बताइए उमर से कौन ज्यादा डरते थे, इंसान से ज्यादा कौन डरते थे उमर से, शैतान और जिन्नात। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर तेरा ये मामला है कि तू जिस रास्ते पर चलता है शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। वो उमर ये थे। इतना डर कि जब साहबे कराम ने देखा कि उमर आ रहा है, वो उमर इतना खतरनाक आदमी आ रहा है, सारे घबरा जाते हैं। हजरत हमजा कहते हैं आराम से बैठे रहो, अगर अच्छी नीयत से आ रहा है तो ठीक, अगर नीयत खराब होगी तो उसी की तलवार से उसे खत्म कर दूंगा। दरवाजा खोला जाता है। उमर इब्न खत्ताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और आकर कहते हैं आज से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जैसे ही उमर इब्न खत्ताब ये कलमा पढ़ते हैं, सहाबा कराम जोर से बोलते हैं अल्लाहु अकबर। क्या बोलते हैं, क्योंकि सहाबा कराम के अंदर जोश आ जाता है कि हमजा भी आ गए और कौन आ गए, दूसरे उमर आ गए। अब हमारे पास ताकत आ गई, कुव्वत आ गई, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अब डर कम हो जाएगा, जुल्म कम हो जाएगा। ये अमल इतना सख्त होता है कि कुफ्फार मक्का के अंदर हड़कम मच जाता है। क्या मच जाता है, हड़कम। एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर आप लिख लीजिए, इसको पॉइंट नंबर 8 आप दे दीजिए। अल्लाह के नबी की दावत को रोकने का जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, कौन सा पॉइंट हुआ ये, अब 8वां पॉइंट लिखिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, भाई कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बोल दीजिएगा। तो बीच में जो वाकयात थे मैंने उम्र के लिहाज से आपको बताए। अब 8वां पॉइंट लिखिएगा। आप ससम को रोकने के लिए उन्होंने एक और बात ये की कि आपको लालच देने आए। क्या करने आए, लालच देने आए। आपके पास उतबा आता है। कौन आता है, उतबा। कौन आता है, उतबा। ये दूसरा उतबा है, उतबा बिन रबिया जो है ये आता है और आकर कहता है कि अगर आप ये सब जो अमल कर रहे हो ना, अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको सब मिलकर बहुत सारा क्या दे देते हैं, पैसा दे दे। पहला लालच क्या दिया, माल का लालच। किस चीज का, माल का। दूसरा लालच दिया कि अगर आप शर्फ चाहते हो, इज्जत चाहते हो तो हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बादशाह बना लेते हैं। तीसरा कहा कि अगर आप ये सब करके, ये वजह है कि आप बीमार हो तो हम आपका इलाज करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, इलाज करवा देते हैं। चौथी चीज कही, अगर ये सब करके शादी करना चाहते हो तो अरब की सबसे खूबसूरत औरत से आपका क्या करवा देते हैं, निकाह। सोचिए नहीं, दीन से रोकने के लिए किन किन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है पता चला आपको। पहली चीज क्या है, माल। क्या चीज है, माल। दूसरी है दुनिया की इज्जत और शोहरत। तीसरी चीज इसमें जो उन्होंने जिक्र की थी बीमारी, पर तीसरा पॉइंट मेन है क्या, औरत। क्या बताई, औरत। कि अगर आपका मकसद शादी करना है तो हम क्या करते हैं, अरब की सबसे खूबसूरत लड़के से आपका निकाह करवा देते हैं। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने इसके लिए दीन का काम नहीं किया। मेरे दीन का मकसद अल्लाह ताला की रजा, मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना। मैं इसीलिए ये सारे अमल कर रहा हूँ। मैं दुनिया की लालच के लिए कोई अमल करने वाला नहीं हूँ। आपने उनकी इन बातों का भी इनकार कर दिया। क्या कर दिया, उनकी बातों का इनकार कर दिया। कुफ्फार इससे और ज्यादा उलझ गए और ज्यादा टेंशन में आ गए। उसके बाद जो उन्होंने साजिशें की इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपके सामने में जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की